الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ مختصر سی میں نے گفتگو کرنی ہے تقریباً 25 سے 30 منٹ کی. یقینی بات ہے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی. جو کچھ ہو سکتا ہے میں اس میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے آج کا پروگرام، اس کا عنوان چونکہ سیرت ہے اور اصلاحی موضوع ہے، اس سے متعلقہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ختم کرنے کے لیے. خود فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ اس دنیا پر ہے وہ سب مٹ جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا. ایک ہمارا رب ہے جس کو بقا ہوگی، باقی سب مٹ جائیں گے. یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں بنی، یہ دنیا مٹنے کے لیے بنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، وہ ایک بڑی چیز ہے اور اس دن کی تیاری کرو. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، آپ چٹائی پر آرام فرما رہے تھے. آپ کے بدن اطہر کے اوپر، چونکہ آپ کا بدن مبارک خوبصورت تھا، چٹائی کے نشانات پڑ گئے. تو صحابی ہے کہ یا رسول اللہ اتخذنا لك وطاء، اجازت نہیں دیتے کہ ہم آپ کے لیے کوئی گدا بنا دیں؟ آپ کو چٹائی کے نشانات کمر پر لگ رہے ہیں، کوئی نرم چیز بچھا دیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. میری مثال تو دنیا میں ایسی ہے جیسے کوئی ایک راہ چلتا مسافر ہو، وہ چلتے چلتے راستے میں تھک جائے، تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے آرام کرنے کے لیے، پھر اٹھ کے اپنی منزل کو چل دیتا ہے. تو میرا تو دنیا میں رہنا اور ٹھہرنا ایسے ہے جیسے مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے لیٹتا ہے. تو مسافر کہاں گدے لگاتا ہے، تو میں نے کیا گدے لگانے ہیں، مجھے ایسے ہی رہنے دو. دنیا کا قیام، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. یہاں سے آخرت کی تیاری کر کے جانا یہ مقصود حیات ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پاک پیغمبر عطا فرمایا، ایسے عظیم تر نبی کہ دنیا ان جیسی ہستی لانے سے عاجز ہے، قاصر ہے، بے بس ہے. ایسی ہستی نہ آج تک پیدا ہوئی اور اب تو ہے ہی نہیں اور نہ قیامت تک پیدا ہوگی. اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس جیسا کسی کو نہیں بنایا. احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر خامی سے پاک ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ چاہتے تھے ویسے رب بناتا گیا. اللہ نے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق بنایا ہے. آپ کا جسم خوبصورت، بدن خوبصورت، ظاہر خوبصورت، باطن خوبصورت. سر مبارک آپ کا چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، داڑھی مبارک آپ کی گھنی، چہرہ مبارک ماشاءاللہ چوڑا خوبصورت، ازہر اللون، پھولوں کی طرح آپ کا چہرہ خوبصورت تھا. آپ کا چہرہ سفید نہیں تھا، چہرہ سرخ نہیں تھا، خوبصورت پھول کی طرح تھا. ہاتھ مبارک نرم تھے. مسلم کی روایت حضرت انس فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا،
अलियन मिन कफ़ रसूल अलैहिस्सलाम, मैंने दुनिया में रेशमों को हाथ लगाया, मैंने मुलायम चीजों को हाथ लगाया, जब मेरा हाथ आका मदनी के हाथ पर लगा, रेशम पीछे रह गए, आका का हाथ आगे निकल गया। ऐसा नरम मैंने नहीं देखा कोई हाथ। फिर वो कहते हैं वला मशस्तु वला शममतु तीबन अतयब मिन रीहिही, मैंने दुनिया में बड़ी खुशबुएं सूंघी हैं, ज़ौक़ है खुशबू सूंघने का, लेकिन जब मैंने आका के पसीने को सूंघा तो जो खुशबू यहाँ से आई वो दुनिया के किसी इत्र में नहीं थी। बाबत में तीबिही तो रुकातुहु, सुबुल हुदा वाले ने लिखा है मेरे पैगंबर जिस रास्ते से चलते थे वो रास्ता मुअत्तर हो जाता था, उन गलियों से खुशबुएं फूटती थी। एक दफा आप तशरीफ ले गए हजरत अनस के घर में और उन्होंने आपके लिए बिस्तर बिछाया चमड़े का, और चमड़े के बिस्तर में खासियत है वो पानी को जज्ब नहीं करता, पानी ठहर जाता है। आप आराम फरमा रहे थे, आपने करवट बदली तो आपके जिस्म मुबारक से पसीना निकला, वो चमड़े वाले बिस्तर पर ठहर गया। हज़रत अनस की वालिदा उम्मे सुलैम आती हैं, वो आराम से ऐसे सौंपने लगती हैं पसीने को, आका मदनी को जाग आ जाती है। आपने देखा कि उम्मे सुलैम खड़ी हैं और ऐसे कुछ कर रही हैं। आपने पूछा मा हाज़ल्लज़ी तस्नईन या उम्मे सुलैम, उम्मे सुलैम ये क्या मामला है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अस्हाबिही वसल्लम, का मुझे खुशबुओं का बड़ा शौक है और मैं खुशबुएं रखती हूँ अपने पास, मेरे घर में खुशबुएं होती हैं। अभी हमारे घर तशरीफ लाते हैं तो मैं काम करती हूँ। क्या? कहा या रसूल अल्लाह आपके पसीने को इकट्ठा करती हूँ, एक बोतल में डालती हूँ, फिर मेरे पास जो इत्र की शीशियाँ होती हैं आपके पसीने का एक कतरा उठाकर उस इत्र की शीशी में डाल देती हूँ। जितनी खुशबू उस पसीने वाली इत्र में होती है इतनी खुशबू किसी इत्र में नहीं होती। मेरे पैगंबर के, ये मुस्लिम की रिवायत है, मेरे पैगंबर के पसीने में ये खुशबू है तो आपका बाकी आमाल में आपके बदन का कौन बयान कर सकता है? ऐसी लाजवाब बेकमाल बेमिसाल बाकमाल हस्ती अल्लाह ने पैदा फरमाई है। अल्लाह ने हमें फरमाया है मेरा नबी है, इसके पीछे चलते चले जाओ, जन्नत में पहुंचते चले जाओ, और अगर रास्ता हटा लिया इनसे तो फिर तुम जन्नत में नहीं पहुंच सकते। जन्नत तक पहुंचने के लिए जरूरी है मेरे पैगंबर के पीछे चलो। ये वो हस्ती है जिसको मैंने दुनिया में भी बुलंद करके रखा है, जिसके तस्करे में आखिरत में भी बुलंद करूंगा। ये मेरा हबीब है। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे नबी, मेरे पैगंबर, मेरे हबीब, मैंने आपकी शानों को बुलंद कर दिया है। दुनिया में आपके नाम के चर्चे हैं, आपके नाम के तस्करे हैं, आप सराब व खैर व बरकत हैं। लफ्ज़ मोहम्मद का माना तारीफ किया हुआ, मीम हटा दो, हम का माना अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, हा को हटा दो, मद बचता है लोगों को अल्लाह की तरफ खींच कर लाने वाला, मीम हटा दो, दाल बचती है लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाने वाला। ये वो नबी है जिसके हर्फ मिटाते जाओ नाम बेमाना नहीं बनता। हमारे नाम बेमाना हो जाते हैं अगर उनके हरूफ हटा दो। अल्लाह ताला ने ऐसा पैगंबर अता फरमाया, ऐसा नबी अता फरमाया। हज़रत अली फरमाते हैं मैं आका के साथ मक्का के पहाड़ों से गुजर रहा था, हमारा गुजर एक दरख्त के पास से हुआ, एक पहाड़ और पत्थर के पास से हुआ। मा मररना बिशजरिन वला जबलिन वला हजरिन, मैं जिस पत्थर के पास से गुजरा आका मेरे साथ थे, उस पत्थर से आवाज मेरे कानों ने सुनी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पहाड़ भी मेरे पैगंबर को सलाम करते थे और पत्थर भी मेरे पैगंबर को सलाम करते थे, दरख्त भी मेरे पैगंबर को सलाम करते थे। जिस्म मुबारक मुताहर था, दांत मुबारक जब आप बात करते थे इज़ा तकल्लम रुयका नूर यखरुज मिन सनायाहु, आपके दांतों से नूर की लाटें निकलती थी। ये आका मदनी के दांत हैं। आपका चेहरा हसीन था, हुस्न जमाल वाला था। अल्लाह ने हमें ऐसे नबी दिए हैं। क़यामत वाला दिन होगा, आपने फरमाया अना अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल अर्ज़, क़यामत का मैदान कायम होगा, इंसानियत निकलेगी, सबसे पहले जो इंसान निकलेगा वो मोहम्मद मुस्तफा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने फरमाया बियदी लिवाउल हम्द वला फखरा, क़यामत का दिन होगा, सारी इंसानियत होगी वहां मौजूद। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम तक, वहाँ इब्राहीम भी मौजूद, ईसा भी मौजूद,
मूसा भी मौजूद अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात, सारे अंबिया मौजूद हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया एक झंडा होगा जो मेरे हाथ में होगा, और आपने फरमाया उस झंडे के नीचे आदम से लेकर आखिर तक सारे अंबिया उस झंडे के नीचे होंगे, झंडा मेरे हाथ में होगा। क्या शान है कि झंडा उठाएंगे तो अंबिया नीचे आएंगे और अल्लाह उनको अपने नबी को इज्जत दिखलाएगा। मैदान महशर में सब परेशान हाल होंगे और आएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास कि आप अल्लाह से सिफारिश करें, अल्लाह हमारा हिसाब ले। कहेंगे लस्तु हुनाकुम, आज आदम की मजाल नहीं है कि वो यहाँ सिफारिश कर सके। ये तो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, सारे हजरत नूह के पास आएंगे, वो कहेंगे लस्तु हुनाकुम, आज नूह का मकाम नहीं है कि सिफारिश कर सके। सारे मैदान माशर का चक्कर लगा के पहुंचेंगे एक हस्ती के पास जिसका सर सजदे में है, और वो मेरे और आपके नबी हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा हैं, अहमद मुजतबा हैं, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, दुनिया में सबसे मुअज्जज हैं, आखिरत में सबसे मुअज्जज हैं, सबसे बड़ी जन्नत के मालिक हैं। इन्हीं आंखों से रब को देखने वाले हैं। जमीन से उठते हैं बैतुल मक़दिस पहुंचते हैं, बैतुल मक़दिस से उड़ान होती है तो आसमानों पे पहुंचते हैं, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, सातों आसमानों को क्रॉस करके मेराज पे पहुंचते हैं, अल्लाह के अर्श पे जाते हैं, अल्लाह के सामने जाते हैं, अल्लाह से दीदार, अल्लाह का दीदार होता है, जन्नत को देखते हैं, जहन्नम को देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, फिर उसी रात वापस आते हैं। ये मकाम उस हस्ती को मिला है जो मेरे और आपके नबी हैं। अल्लाह ने ऐसा नबी अता फरमाया, क़यामत वाले दिन आप सिफारिश फरमाएंगे, हर उस इंसान के हक में सिफारिश होगी जिसने एक दफा भी कलमा पढ़ा होगा। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को लेकर आपने फरमाया मैं सबसे पहला आदमी हूँ जो जाकर जन्नत के दरवाजे को खटखटाएगा, और आपके साथ कौन होगा? आपकी उम्मत होगी, और आप सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, और आपकी उम्मत यानी हम इंशाअल्लाह सारी उम्मतों से पहले जन्नत में दाखिल होंगे। सारी उम्मतें बाद में जाएंगी, उम्मत मुस्तफा पहले जाएगी, सारे अंबिया बाद में जाएंगे, खुद मोहम्मद मुस्तफा पहले जाएंगे। ये मकाम है उस नबी का, ये मकाम है उस नबी की उम्मत का कि अल्लाह ने हमें ऐसे नबी से जोड़ा है, इन नबी के पीछे चलने वाला पार ही पार है। एक दफा आपने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, हाँ जो इनकार कर दे तो वो तो जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह इनकार कौन करता है? आपने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, वमन असानी फकद अबा, जिसने मेरे रास्ते को छोड़ दिया वो मुनकिर है, वो जहन्नम में जाएगा। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह के नबी के रास्ते को अपनाना है, आपके पीछे चलना है, आप जैसी जिंदगी अपनानी है, हमारा उठना बैठना खाना पीना सीरत सूरत मुआशरत मामलात सियासत जिंदगी का हर शोबा हमारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक होगा, तो फिर क़यामत वाले दिन जब उठेंगे हौज़ कौसर पे हम जाएंगे, अल्लाह के नबी अपने हाथों से हौज़ कौसर से पानी पिलाएंगे, और जिसको हौज़ कौसर का पानी नसीब हो गया, आपने फरमाया मन शरिबा मिन्हु लन यज़मा बअदहु अबदा, जिसने एक दफा हौज़ कौसर पर आकर मेरे हाथों से पानी पी लिया फिर उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, वो सीधा जन्नत में जाएगा, और जन्नत में भी प्यास नहीं लगेगी। आप हैरान होंगे जन्नत में कैसे प्यास नहीं लगेगी? जन्नत में पानी पिएंगे प्यास नहीं होगी, खाना खाएंगे भूख नहीं होगी, भूख तो तकलीफ है, प्यास तो तकलीफ है, लज्जत के लिए पिएंगे, लज्जत के लिए खाएंगे, ऐश और इशरत का जहान है, नबी के पीछे चलने वाला आखिरत का बादशाह है। जब जन्नत में जाएगा ये जन्नती जिसने दुनिया में अल्लाह के नबी के रास्ते को अपनाया, उनकी सीरत और सूरत को अपनाया, उनकी मुआशरत और मामलात को अपनाया, उनकी चाल चला, उन जैसी इबादतें की, उन जैसी नमाजें पढ़ी, उन जैसे रोजे रखे, जब ये जन्नत में जाएगा तो अल्लाह कहेगा आ गया है मेरे दीन पे चलता हुआ, मुशक्क़तें सहता हुआ, तकलीफों में चलता हुआ, आज मेरे पास आया है, सुन मेरा बंदा क्या। अल्लाह कहेगा इन्ना लका वला तमूतु अबदा, हमेशा की जिंदगी मुबारक हो, कभी मौत ना आएगी। फिर अल्लाह फरमाएगा इन्ना लकुम अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा, हमेशा की जवानी मुबारक हो, कभी बुढ़ापा ना आएगा।
फिर कहेगा अल्लाह इन्ना लकुम अन तसिहु फला तस्कमु अबदा, हमेशा की सेहत मुबारक हो, कभी बीमारी करीब से भी ना गुजरेगी। इसलिए कि दुनिया में जो सहने थे दुख सह लिए, शरीयत पे चल के आए हो तो अब कोई दुख नहीं है, सारे सुख तुम्हारे यहाँ बना दूंगा। हदीस में आता है क़यामत वाले दिन एक इंसान को लाया जाएगा। एक ऐसा इंसान होगा दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफें सहने वाला, सबसे ज्यादा परेशान हाल, सबसे ज्यादा दुखों का मारा हुआ, सबसे ज्यादा गमज़दा इंसान, सबसे ज्यादा मसाइल में घिरा हुआ, मैं इसका कितना इहाता करूं, ऐसा इंसान क़यामत वाले दिन लाया जाएगा। लेकिन ये वो इंसान था जो जिंदगी भर नबी की चलता रहा, नबी की राह पे चलता रहा, नबी के दीन पे चलता रहा, शरीयत को सीने से लगाए रखा। जब ये क़यामत वाले दिन आएगा तो अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों को, मेरा नेक बंदा आ गया है, इसको ले जाओ और सिर्फ जन्नत का एक चक्कर लगवा के बाहर निकाल लो। तो फरिश्ते ले जाएंगे, जन्नत का चक्कर लगवाएंगे। अल्लाह ताला फिर पूछेगा मेरा बंदा हाल रअयत शिद्दतन कत्तु, दुनिया में कभी कोई दुख देखा था? कहेगा अल्लाह मुझे तेरी जात की कसम दुनिया में दुख मेरे पास से भी नहीं गुजरा था। जन्नत का एक चक्कर लगाकर एक दफा घूमकर दुनिया के सारे दुख भूल जाएगा। ये जिंदगी हुई कि थोड़े से दुख बर्दाश्त किए, जन्नत की राहतें पाई। ये तो कोई जिंदगी ना हुई कि दुनिया में अपने ख्वाहिशें पूरी की, कभी नमाज छोड़ी, कभी गर्मियों का रोजा छोड़ा, कभी मामला गलत किया, कभी माँ से लड़ पड़ा, कभी बहन भाई के घर आना जाना बंद कर दिया, कभी सूद का मामला किया, कभी आंखों से गलत देखा, कभी किसी के साथ धोखा किया, कभी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात खत्म किए, थोड़े दिन के अपने जज्बात पूरे किए और ऐश की जिंदगी गुजार ली कि सुबह नमाज के लिए नहीं उठा, गर्मियों में भूखा नहीं रहा, खाता पीता रहा, रोजे नहीं रखे, चंद दिन की लज्जत वाली जिंदगी गुजार के जब पहुंचेगा आखिरत में अल्लाह के पास, तो ऐसा इंसान आखिरत में अल्लाह के पास पहुंचेगा जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा राहत देखी होगी। ये तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों को ले जाओ जहन्नम में, एक होता लगवाओ इसको, तो एक होता लगा के बाहर निकालेंगे। अल्लाह कहेगा उस बंदे से हल मर्रा बिका नईमुन कत्तु, मेरा बंदा बता दुनिया में कोई ऐश देखी थी? कहेगा अल्लाह मुझे तेरी जात की कसम दुनिया में मैंने कोई राहत देखी भी नहीं थी। दुनिया की सारी राहतें जहन्नम का एक झटका भुला देंगी, एक जहन्नम का होता दुनिया के सब ऐशो इशरत को भुला देगा। ये भी कोई जिंदगी है? चंद रोज की राहत देख ली, जहन्नम रसीद हो गए। और कैसी जहन्नम है, ऐसे बड़े बड़े सांप हैं, 30 दिन की मसाफत चलो, 1 महीने की तो सांप की लंबाई खत्म होती है। भला कौन इसको बर्दाश्त कर सकता है? कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे अजीजों, मरने के बाद एक जहान है, मरने के बाद एक जिंदगी है, वो जिंदगी हम सब ने फेस करनी है, उससे कोई बच नहीं सकता। अल्लाह क़यामत वाले दिन कहेगा ऐनल मफर, आज भागना चाहता है तो कहां भाग सकता है? कोई भागने की जगह नहीं है। आज उसी को पनाह मिल रही है जो आका मदनी का गुलाम बनकर आया था, मेरे नबी का आशिक बनकर आया था, मेरे नबी की चाल चलकर आया था। अल्लाह ने ऐसा नबी दिया है। आप जिस वक्त दुनिया में पैदा हो रहे हैं, उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा कहती हैं मैं उस कमरे में मौजूद थी जिस कमरे में आका मदनी की विलादत हुई है। जब आप पैदा हुए आपकी जिस कमरे में विलादत हुई पूरा कमरा रोशनी से भर गया था। और फिर सीरत इब्ने हिशाम के मुताबिक मेरे पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ ले वालिदा मुताहरा के बतन मुबारक से आप बाहर आते ही सबसे पहले आपने सजदा किया है, आपने सर जमीन पे रखा है। ये मेरे नबी हैं जो दुनिया में आए हैं तो इस शान के साथ आए हैं। और जब आप पैदा हुए हैं, उस्मान इब्न अबिल आस की वालिदा कहती हैं मैं कमरे से बाहर निकल कर देखती हूँ चांद के सितारे नीचे आ चुके हैं, मुझे ऐसे लगता था ला यक़अन अलैया, ये नीचे इतने आ चुके हैं कि अभी मेरे ऊपर गिर जाएंगे। वो आका के दीदार को आए हुए थे, आका की जियारत को आए हुए थे। ये हस्ती दुनिया में तशरीफ लाई है। और आखिरत का मकाम तो मैंने बताया कि जब सारे अंबिया के पास लोग होके आ जाएंगे, फिर एक हस्ती के पास पहुंचेंगे। वो कौन हस्ती है? मेरे और आपके नबी हैं। अल्लाह उनको कहेगा मेरा नबी इरफा रासक, सजदे से सर उठा, आज सल तोता, मांग आज रब अता करेगा।
इश्फा तुशफ़ा, लोगों के सर पे हाथ रख, मैं जहन्नमियों से निकाल के जन्नतियों के सफ पे खड़ा कर दूंगा। मेरा पैगंबर तू आज जबान से बोल, मैं वो तुम्हें अता कर दूंगा। सारी दुनिया मेरे नबी की इज्जत को देखेगी। आप हौज़े कौसर पिला रहे हैं, सब देख रहे हैं, और आपको मकाम महमूद मिल रहा है, सब देख रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफारिशें करके जहन्नमियों की फहरिस्त से निकालकर जन्नतियों के सफ में खड़ा कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। ऐसे नबी की गुलामी में दुनिया भी अच्छी है और आखिरत भी अच्छी है। हमें इस नबी के पीछे चलना है। इस नबी के पीछे चलने में जहां नमाज उन जैसी, रोजा उन जैसा, ज़कात उन जैसी, इबादत उन जैसी, वहां मुआशरत भी उन जैसी रखनी है। मेरे नबी का बोल क्या था, मेरे नबी के अखलाक क्या थे। आप किसी रिश्तेदार से रूठे हुए नहीं थे, और आपने बताया वसिलुल अरहाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। मेरे उम्मतियों, तुम दुनिया से इस हाल में कब्र में आ जाना कि तुम किसी रिश्तेदार से रूठे हुए नहीं हो, तुम किसी से नाराज नहीं हो, तुम्हारा किसी के घर आना जाना बंद नहीं है, सबके साथ तुम्हारा बोल चाल है, आना जाना है। जब आखिरत में मेरे पास आओगे तदखुलुल जन्नत बिसलाम, मैं तुम्हें सीधा जन्नत में पहुंचा दूंगा। अगर रिश्तेदारियां जोड़ कर है तो जन्नत में भेजूंगा, और अगर रिश्तेदारी तोड़ कर है, बुखारी की रिवायत, ला यदखुलुल जन्नत कातिअन, जो रिश्तेदारी तोड़ कर यहाँ से कब्र में पहुंचता है तो वो जहन्नम में जाता है, जन्नत में नहीं जाता। तो मेरे अजीजों, मेरे नबी की जिंदगी का एक बड़ा पहलू है कि हम किसी रिश्तेदार से रूठे हुए ना हो, हमारी किसी से अनबन ना हो, भला हमारा रिश्तेदार हमारे साथ जालिम हो। आपने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से, सबसे ऊंचा सदका क्या है? सहाबा खामोश। आपने फरमाया, तेरा सबसे ऊंचा सदका वो है अलाज़िर रहमिल काशिफ, तेरा वो रिश्तेदार जो तेरा दुश्मन ही नहीं, शदीद दुश्मन है, और तू उसकी गुर्बत को देखकर उस पर माल खर्च करता है, ये नहीं देखता कि उसने मेरे साथ ज़ियादती की है। ये कायनात का अफजल तरीन सदका है। सहाबी है, कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा अमल बता दो जन्नत में ले जाए, जहन्नम से बचा ले। आपने फरमाए आमाल, उसमें आपने फरमाया वल फय्यु अला ज़िर रहमि ज़ालिम, अपने उस रिश्तेदार के साथ अच्छे सलूक से चलते रहना जो तेरा रिश्तेदार तेरे साथ ज़ियादतियां करता है। उसके घर आने जाने बंद न करना, उससे ताल्लुक जोड़े रखना। जब आखिरत में आएगा तेरा ये अमल तुझे जन्नत में ले जाएगा, जहन्नम से दूर कर देगा। मेरे अजीजों, हमारे नबी की ये भी एक जिंदगी का पहलू है कि हम रिश्तेदारों से जुड़ के रहें, और दूसरा हम किसी के साथ ज्यादती न करें। हमारे साथ कोई ज्यादती करता है, हम माफ करें, हमसे मुआफी मांगने आता है, अव्वल वहले में माफ कर दें। जो आदमी किसी मुसलमान को मुआफ कर देता है, हालांकि गुस्सा निकालना चाहे निकाल सकता है, बदला लेना चाहे ले सकता है, उससे दूर रहना चाहे रह सकता है, लेकिन मुआफ कर देता है। मन अफा इंदल कुदरा अफल्लाहु अन्हु यौमल उसरा, जो आदमी इख्तियार रखने के बावजूद, गुस्सा निकालने की ताकत रखने के बावजूद अगले को मुआफ कर देता है। बीवी पर गुस्सा निकाल सकता है, मुलाजिम पर निकाल सकता है, अपने रिश्तेदारों पर निकाल सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुआफ कर दिया है, नाराजगी रंजिश खत्म है। मेरे पैगंबर ने फरमाया क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह इसको मुआफ कर देगा। इसने दुनिया में मुआफ किया था, अल्लाह इसको आखिरत में मुआफ फरमा देगा। तो मेरे अजीज बुजुर्गों, हमने किसी से रूठना नहीं, लोगों को मुआफ करना है। अगर कोई रिश्तेदार हमारे पास चलकर आया, रिश्तेदार नहीं, हदीस में मुसलमान भाई, कोई मुसलमान भाई हमारे पास चलकर आया और अताहु अखूहु मुतनस्सिलन, उसने आकर कहा गलती हो गई है, माजरत करने आए आपके पास, रफा दफा करो मामले को। मेरे पैगंबर ने फरमाया अगर इस आदमी ने उससे सुलह न की, इसका मुसलमान भाई चलकर आया और कहने आया कि बस माजरत करता हूँ, सुलह कर लेते हैं, और इसने आगे से सुलह नहीं की, ताने शाने दे के रवाना कर दिया। मेरे पैगंबर ने फरमाया गौर से सुनना, फरमाया लम यरिद अलैयल हौज, क़यामत वाले दिन मेरे पास हौज़े कौसर पे नहीं आएगा, इसको वहां आने की इजाजत नहीं मिलेगी। जैसे इसका मुसलमान भाई मेरा उम्मती इसके पास चल कर आया था और इसने उसको खाली धुतकार दिया था, अपने पास नहीं कबूल किया था, जब ये क़यामत वाले दिन मेरे पास हौज़े कौसर पे आएगा तो मैं भी कबूल नहीं करूंगा, मैं भी इसको यहाँ से पीछे कर दूंगा। मेरे भाइयों, जो हमारे पास चलकर आए हम उसके उज़्र को कबूल करें,
سب کے ساتھ صلح رکھیں، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ میرا جھگڑا نہ ہو، میری انبن نہ ہو۔ آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی میرے لیے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک آپ نے فرمایا شرمگاہ کی، دوسرا آپ نے فرمایا دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان کی۔ زبان ہم کسی کو تانا نہ دیں۔ گھروں میں شادیاں ہو کر آتی ہیں، سسر ساس چھریاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں بہو کے لیے، ہر وقت تانا، ہر وقت تانا، نندیں بھابھی کو دے رہی ہوتی ہیں، شوہر بیوی کو تانے دے رہا ہوتا ہے۔ یہ زبان کا بول جب ترش ہو جاتا ہے، جنت والوں سے نکال کے جہنم والوں میں انسان کو ڈال دیتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور زبان کا بول جب میٹھا ہو جاتا ہے، اگلے کے ساتھ پیار سے بولتا ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ جنت کے شیش محل عطا فرماتا ہے۔ میٹھے بول کے اوپر شیش محل عطا فرماتا ہے۔ ہمارا بول میٹھا ہو، ہمارا بول میٹھا ہو، ہمارا بول ہر بیوی کے ساتھ، بہو کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ، ماتات کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، ہمارا بول سب کے ساتھ میٹھا ہو اور پیار والا ہو، جنت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھے بول والا بنائے، میٹھے بول والا بنائے، رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر چلنے والا بنائے، اور اپنے نبی پاک کا عشق نصیب فرمائے۔ کیونکہ 25-30 منٹ میں تو ہو ہی کچھ نہیں سکتا تھا، جو بے ربط آیا وہ میں نے عرض کر دیا۔ گھنٹہ ہوتا تو ہم بھی کچھ بولتے، آپ بھی کچھ سنتے۔ یہی پیغام یہاں سے لے کر چلے جاؤ، میں بھی اور آپ بھی، کہ اگر ہم کسی رشتہ دار سے روٹھے ہوئے ہیں تو آج سے ہماری صلح ہے انشاءاللہ۔ ہم سے کوئی معذرت کرنے آئے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، ہم کسی سے ناراض نہیں ہوں گے۔ ہم سخت بول بول کر بیوی کو، بیٹے کو، اولاد کو، بھابھی کو، کسی کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، ہم نرم بول بولیں گے۔ جنت کے شیش محل مبارک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔